Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. आप लोग सब कैसे हो? How are you all? सब ठीक? कुशल मंगल? Are you all happy? Hallelujah. Hallelujah. साक्षी देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, It's very important to give testimony क्योंकि जब भी आप साक्षी देते हो because whenever you give testimony, आप परमेश्वर की नाम की महिमा करते हो। you glorify the name of the Lord. तो ये पूरे हफ्ते आप लोग को परमेश्वर ने ही सही सलामत रखा है करके मैं भरोसा करता हूँ। The whole week God has been guiding you, so I believe that. अगर ये पूरा वीक If in the entire week, अगर परमेश्वर ने आपका देखभाल किया है तो, if God has taken care of you, अगर परमेश्वर आपको सहायता किया हो तो, if God has helped you out, अगर परमेश्वर ने आपकी हर इच्छा को पूरा किया हो तो, if God has fulfilled the desire of your heart, अगर परमेश्वर आपको और आपके परिवार को सही सलामत रखा है तो, if God has kept you and your family in peace, सिर्फ उन लोग उठ के खड़े होंगे only those people stand up और हम एक परमेश्वर के लिए गीत गा के and we will sing a worship song परमेश्वर की आराधना करेंगे। and we will worship the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हम ऑलरेडी वो गीत पास्टर ने गाए हैं अभी थोड़ी देर पहले। Pastor already sung that song. मैं पूरा रात बैठकर प्रैक्टिस किया होगा। I was practicing the whole night for this song. हालेलुया। Hallelujah. तमिल में तो थोड़ा बहुत मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। If it was in Tamil, I would have adjusted a bit. हिंदी में तो मुझे नया है तो मैं सीख रहा था पूरा रात बैठ। For Hindi, I need to practice a lot. लिरिक्स नहीं मिल रहा था, इधर कॉपी किया, उधर पेस्ट किया, उधर कॉपी किया, इधर पेस्ट किया। I was just trying to copy and paste the lyrics because I couldn't find it easily. इधर पास्टर आया और गाना गा दिया, खत्म। Here the pastor came and directly started worshipping the same song. तो मैंने क्या किया? What I did, ठीक है, हिंदी में गा रहा है ना वो। so he is singing in Hindi, right? लिया फोन, I took my phone, तमिल में गूगल किया। I just googled it in Tamil जैसा गूगल किया और प्रैक्टिस कर रहा था, and I was starting to practice in Tamil. वो तमिल में भी गा दी। He also sang the same song in Tamil. ना हिंदी बचा, Neither the Hindi left ना तमिल बचा। nor Tamil left. अभी गुजराती आपसे सीख के अपन गाना गाना पड़ेगा। Now I need to learn in Gujarati as well. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तो उसमें एक दो पंक्ति उन्होंने छोड़ दिए, 1-2 paragraphs he just left. हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं। We will continue the same song, the left of Hallelujah. paragraph. Hallelujah. सारे विरोधों को करते दूर, सारे विरोधों को करके दूर, हर समय स्तुति से रखा भरपूर, सब मेरे हर समय स्तुति से रखा भरपूर। अभी आवाज उठाकर अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, संग मेरे
और जो भी ऑनलाइन में सुनेंगे, and the people who have logged in online. परमेश्वर ये मौका आपको और मुझे दोनों को दे रहा है God has given a chance to you as well as to me कि हम हमारे गुजरे हुए जिंदगी को याद करना है। that we should not remember the things of our past, हमें गुजरे हुए जिंदगी को याद करना है, that we should remember the things of our past, क्योंकि हमारे गुजरे हुए जिंदगी में परमेश्वर हमारे साथ थे because in our past God was with us, और हर मुश्किलों में, हर तकलीफों में, हर बीमारियों में वो हमारे संग थे and at every point of sickness, every point of trouble, He was there by our side. और वो हम जो तकलीफ सह रहे थे वो महसूस कर रहे थे। And the problems what we had been through, He was also experiencing the same thing. हमारा रोना देना धोना वो सब वो देख रहे थे। Our tears, our weeping, everything He saw. हम जब परेशानी में थे वो हमें देख रहे थे। When we were into trouble, He was looking at us. हमारे गुजरी हुई जिंदगी को आज हमें देखना है। We just need to look back our past जब आपके साथ और मेरे साथ कोई नहीं था, when no one was around and with us. तब सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही हमारे साथ At थे। that point of time, only and only Jesus Christ was there with us. इसके लिए आज हम उनको धन्यवाद देते हैं। For the same reason, we need to thank Him today. हमारे हाथों को उठाकर हम धन्यवाद देना चाहते हैं। Let's lift our hands and say we would like to thank you, Lord. अप्पा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अप्पा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। दिल से अप्पा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। धन्यवाद परमेश्वर, Thank you, Jesus Christ. धन्यवाद आबा फादर, Thank you, Abba Father. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Thank you, Holy Spirit. यहाँ पर जो भी मौजूद है The people who are assembled here, उनकी मनोकामना को आप पूरी करो परमेश्वर। you know the desire of their heart and fulfill it, Lord. उनके आने वाले कल को स्थिर कर दो परमेश्वर। The days which are coming, you make it firm, Lord. उनके आंसू को पोंछकर उनको एक खुशहाल जिंदगी देना परमेश्वर। Wipe every tear from their eyes and let it be filled with gladness. क्योंकि हमारे संग कोई रहे या ना रहे, Because we have someone or not. हम हमारे जिंदगी में गुजरे हुए जिंदगी को हम जब छान कर देखे थे, When we look back in our past, हमारे जिंदगी में कोई रहे या ना रहे, there were people and there were no people. आप हमारे संग हमेशा हर पल थे But you are someone who are with me always. और आने वाले कल में भी आप ही हमारे संग And the हैं। days which are ahead, you will be always with me. इसके लिए आपकी जय हो परमेश्वर, That's why we would like to thank you, आपकी Lord. जय हो We would परमेश्वर, like to thank you, Father. यीशु मसीह की जय हो परमेश्वर, Let's say, Jesus, thank you. यीशु मसीह की जय हो, Let's say, Jesus, we praise you. यीशु मसीह की जय हो, Let's say, Jesus, we praise यीशु you. मसीह की जय हो। यीशु मसीह की जय. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अब विश्राम हो जाएगा। आज हम आपको आपके पिछले जिंदगी के बारे में हम बताते हैं कुछ। Today we are going to talk about our past life. हमारे जिंदगी में कुछ ना कुछ तो घटनाएं हुई है। In our life, something or the other keeps on happening. ऐसा कोई नहीं यहाँ पे जो बैठा है There's no one sitting over here जिसका लाइफ में कुछ भी हुआ नहीं। who would say nothing has happened in my life. हालेलुया। Hallelujah. हमारे लाइफ में जो भी उम्र आज हम है, Whatever age we are today, यहाँ तक परमेश्वर ने हमें चलाया है। till now God has carried us. पर जब हम पिछले गुजरे हुए जिंदगी को देखते हैं, If you look back at our past, तो हमें आज आंसुओं से हम धन्यवाद परमेश्वर को देते हैं। we would like to thank God with our tears. कुछ पल ये सोचते कि हम पिछले हुए जिंदगी में क्यों रोए थे एक चीज के लिए। Few things we would recollect and say, why did we even cry for this thing? ये छोटा सा चीज
That was just a small पर thing. उस समय हमें हमारे लिए वो बहुत भारी था। But at that point of time, it was too heavy for us. उस समय हमारे पास वो विश्वास नहीं था। At that point of time, we did not have that kind of faith. उस समय हम उसके ऊपर कुछ सोचे भी नहीं थे। We were not able to think beyond that at that time. जो भी आपका नुकसान हुआ है पिछले, Whatever you have lost in your past, परमेश्वर उस नुकसान को आज भरपाई करना चाहता है। God wants to fulfill it, want to compensate that today. हालेलुया। Hallelujah. किस किस को आपके जिंदगी में बहुत सारा नुकसान हुआ है? How many of you would say I have lost so many things in my life? नुकसान हुआ है नहीं हुआ है? पैसे का नुकसान हुआ रहेगा। Have you lost your money? आदमी लोग का नुकसान हुआ रहेगा। You would have lost your people. रेपुटेशन का नुकसान हुआ रहेगा। You would have lost your name. करियर का नुकसान हुआ You would रहेगा। have lost your career. रिलेशनशिप का नुकसान हुआ You would रहेगा। have lost your यहाँ पर relationship. जो भी बैठे Whoever sitting over here, सबको कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ है। everyone has gone through a loss. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. पर परमेश्वर इतना महान है कि But God is so big. वो आज जो भी नुकसान आपको पहुंचाया था, Whatever loss you have gone through, उसके बारे में हम बात करने वाले we हैं। are going to talk about it. उस नुकसान को आज परमेश्वर भरपाई करके देने वाला है। God is going to compensate for that loss. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? What's the biggest thing over ये here? नुकसान हमें आया कहाँ से? Why we have to go through this loss? अब जो ये वचन में आपको बताने वाला हूँ, Now we are going to read a word. आपको इसको बहुत बड़े सोच से स्वीकार करना है। You have to think deeply about this word. हालेलुया। Hallelujah. अगर आप छोटे सोच के रहेंगे तो ये जो वचन मैं दूंगा, If you are narrow-minded and I am giving you this verse, ये आपको परेशान करेगा। it will trouble you. हालेलुया। Hallelujah. और मैं ये नहीं चाहता कि आप परेशान होके यहाँ से जाए। I do not want you to be troubled and left from this place. मैं ये चाहता हूँ कि आप सब छुटकारा होके यहाँ से जाने चाहिए। I really want that you should be delivered while leaving from here. हालेलुया। Hallelujah. तो हम सबको क्या मिलना चाहिए आज? So what we all need, क्या मिलना चाहिए? what we all एक need, छुटकारा मिलके जाने चाहिए। we need a deliverance. एक वचन और एक वाक्य आदमी को छुटकारा दे सकता है। One word can deliver you. अभी सिस्टर ने आके इधर साक्षी दिया, When sister came and gave a वो testimony, वचन ने उनको छुटकारा दिया है। that word had delivered her. यहाँ पे पैसा, सोना, चांदी जो नहीं कर सकता वो यीशु मसीह का सिर्फ वचन करके दे सकता है आपके The जीवन। money, the gold, silver will not work that way, but God's word will work that way. हालेलुया। Hallelujah. आपके पास अगर बाइबल है तो If you have Bible in your hand, जोएल 2 में let's take the book of Joel, chapter 2. हिंदी में क्या है? जोएल है। ओके। Let's take the book of Joel, chapter 2. जोएल 2 में Chapter 2. 25 पढ़ेंगे। Let's read word 25. I will repay you for the years the locusts have eaten, the great locust and the young locust, the other locust and the locust swarm, my great army that I sent among you. हालेलुया। Hallelujah. Let's read in Hindi. Joel chapter 2 verses 25. और जिन वर्षों की और जिन वर्षों की उपज अरबे हाँ नामक पीढ़ियों हाँ और येलेक और आसिल ने और गाजाम नामक पीढ़ियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको बर दूंगा। हालेलुया। Hallelujah. तमिल में पढ़ लो। Let's read in Tamil. Yovel. हाँ हाँ हालेलुया। Hallelujah. ये बाजू कोई पढ़ लो, एक बार सब दिन पढ़ लो, फिर समझ जाएगा क्या फिर आगे का क्या बात करने वाले हैं। हाँ पढ़ो जल्दी बोलो।
दो ही वचन अपने पास आज, इसके लिए पढ़ लो, चलेगा, सब पढ़ लो। हाँ हाँ हालेलुया। Hallelujah. ठीक है, अभी ये आप घर पे जाके पढ़ो आज, अगर आपके पास समय है तो। If you have time, go home and also read it. ये आप जितना भी पढ़ेंगे ना, How many times you would be reading ये it? आपको थोड़ा टाइम लगेगा। That you will take some time. इसको समझने में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, To understand this, you will take some more time. क्योंकि इसको आप कोई भी एग्जाम्पल से कनेक्ट कर सकते हैं। Because you can connect this verse with any example. इसको आप एक सीजन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। You can connect this with the season of your life. पर मैं अभी उस चीज को बहुत छोटा सा और एकदम सिंपल वे से आपको समझाना चाहता हूँ। But I am going to explain this in a very simple way. परमेश्वर कहता है कि यहाँ पे 4 इंसेक्ट को भेज रहा है। God is saying that He is going to send 4 insects. क्या क्या? In 4 कीड़े मकोड़े जो भी आप सोचेंगे वो उसको भेजा है। God has sent 4 insects, locusts. समझ में आ रहा आपको? Hallelujah. सिर्फ सिंपल में बोलो, 4 कीड़ा याद रखो सिर्फ। There are 4 locusts. Just remember that. क्या क्या है? What is that? परमेश्वर ने कितना कीड़ा भेजा? How many types 4 of कीड़ा। locusts? 4. अपने अंदर जो कीड़ा है वो छोड़ दो, वो कीड़े की बात नहीं कर रहे हैं। The insect which is within us, forget about it. ये 4 कीड़ा परमेश्वर ने भेजा बोलते हैं। This is God is saying God has sent 4 type of insects. हालेलुया। Hallelujah. अब ये 4 कीड़े को Now these 4 locusts, मैंने कैसा डिवाइड किया है? how did I divide? एक कीड़ा जो है 1 locust वो एक दिन में आके आपका पूरा जिंदगी खा सकता है। that can come into your life in one day and can eat your entire life. हालेलुया। Hallelujah. एक कीड़ा एक दिन में आपका पूरा मेहनत को नष्ट कर सकता है। That insect can enter your life and within a day's time it will swallow everything of your life. अभी दूसरा कीड़ा, Now the second insect. वो कीड़ा आके That insect, आपको पूरा हफ्ता आपका खा सकता है। that type of locust will enter your life and will eat only 1 week of yours. हालेलुया। Hallelujah. तीसरा जो कीड़ा है There are the third type of locust वो आके that will come, आपका पूरा महीना खा सकता है। that can eat up your entire month. हालेलुया। Hallelujah. अब ये चौथा जो कीड़ा है Now the last locust वो आके that will come, आपका पूरा साल खा सकता है। that can eat your entire year. हालेलुया। Hallelujah. 4 कीड़े हैं There are 4 types of और locusts. ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, ये प्रॉब्लम है अगर ये इसको एक्सप्लेन करना है तो। It's a very big challenge to explain these type of क्योंकि locusts. ये कीड़े शैतान ने नहीं भेजा। This is not a locust sent by Satan. ये जो कीड़ा जो सेना है ये कीड़े का, This type of locust which is sent, ये परमेश्वर बोलता है मैंने भेजा। this God Himself is saying that I have sent it. अभी ये समझने के लिए और ये प्रचार करने के लिए सबसे कठिन वचन है ये। To understand this and to give this as a sermon, it is a very difficult thing. अभी जो मसीह में है वो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। The people who are into Christ, they will understand. जो पहली बार सुनेगा ना उसको थोड़ा भी आइडिया नहीं रहेगा क्या हो रहा है। First time if someone is hearing it, they will not be able to understand this. तो उसके ज़हन में ये रहेगा कि ये यीशु मसीह जो हमारे लिए सूली पे चढ़े, ये किए वो ही हमारे लिए कीड़े भेज रहे क्या? They will be thinking God Himself was crucified for us and He carried the cross for us. Did He even think and send this type of locust in my life? हालेलुया। क्योंकि Hallelujah. वचन पे कोई भी एकदम गहरा उतरता नहीं है, Because nobody deep dives the word. वचन का ज्ञान भी नहीं। Nobody meditates the word. पर आज ये वचन को हम तोड़ के बात करने वाले But हैं। today we will break this verse. सिर्फ 2 ही वचन के बारे में बात करने वाले हैं। There are only 2 words for इसलिए today. मैंने आप लोगों को बोला कि वचन पढ़ लो ताकि आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या बात कर रहे That's हैं। why I told you, everyone read the word so that you are able to understand what's तो कितने happening. कीड़े? How many type of locusts? वेरी नाइस। नेक्स्ट टाइम से मैं ना आपके लिए चॉकलेट ये सब लेके आएगा, जो अच्छा आंसर देगा उसको दे देगा। Next time I will bring chocolates for you. Who gives the right answer, I will be giving chocolate. जिसके पास चॉकलेट ही नहीं है वो फिर समझ आने का ये, फिर उसके लिए बड़ा टेडी बेयर दे देगा वो जो खड़ा है पीछे ना। हालेलुया। Hallelujah. मतलब दो गिफ्ट रहेगा। There will be 2 gifts. जो अच्छा आंसर करे उन लोगों को चॉकलेट, The people who are answering right, they will get chocolate. जो आंसर ही नहीं करे उसको टेडी बेयर। The people
people are not answering will get a teddy bear. हालेलुया। Hallelujah. बहुत सारा टेडी बेयर मिलने वाला लगता है। I guess so many people are going to receive teddy bear. हालेलुया। Hallelujah. तो ये वचन के द्वारा वचन बोलता है कि कितने कीड़े, As per this verse, how many locusts? कितने कीड़े, How many locusts? वेरी गुड, चॉकलेट का बंदोबस्त कर रहे हैं आप लोग सब। So everyone is ready to receive chocolates. तो चार जो कीड़े, There are 4 types of इसको locusts. मैंने कैसा उसको डिवाइड किया, How did I divide it? एक कीड़ा जो आपको एक ही दिन में नष्ट कर देगा, One locust will come and eat your entire life in a day's time. दूसरा जो कीड़ा है वो हफ्ते भर में आपको नष्ट कर देगा, The second locust will come and eat your life in तीसरा जो a कीड़ा, week's time. तीसरा जो कीड़ा है The third type of वो locust, पूरा महीना आपका खा लेगा, it will eat your entire month. और जो चौथा जो कीड़ा है And the fourth type of locust, वो आपका पूरा साल खा लेगा। it will eat your entire year. हालेलुया। Hallelujah. अभी पहला जो कीड़ा है वो कैसा है, एग्जाम्पल बात करते हैं। Let's take an example how the first insect will react. सबको जो मालूम है ना, Everyone knows Job, right? Ayub. बाइबल में अय्यूब के बारे में सबको पता है। Everyone knows about Job from Bible. उसके जीवन में ये पहला वाला कीड़ा एंटर हुआ। In his life, the first type of locust entered. आप जोब 1 में 13 से 22 घर पे पढ़ के देखो। Go home and read Job chapter 1. उसके अभी मत पढ़ो, बहुत है, It's too much, don't read it now. पर उसमें आप काफी टाइम में पढ़ चुके होंगे। You might have read it in the past multiple times, पर मैं अभी उसका सिर्फ छोटा पार्ट बोल रहा हूँ बस। but I'm just giving you an example. ये जोब ना, जब परमेश्वर का बंदा था ये, This Job, a man of God, एक ही दिन में, in a day's time, कितना दिन में, how many days? एक ही दिन में 1 day. उसका हर चीज नष्ट हो गया। He lost each and every single thing. कितना दिन में, Within how एक many दिन days? में 1 day. उसका बेड, बकरी, बच्चे, पोजीशन, सब कुछ, He lost his children, wealth, property, everything in a single day. उसके आंख के सामने सब नष्ट हो गया। कितने दिन में, Everything was destroyed in a day's time. ये जो पहला कीड़ा। This is the first type of locust we are talking about. हालेलुया। Hallelujah. आप लोग ये सोचो कि कभी आपके जीवन में एक ही दिन में कुछ हर चीज नष्ट हुआ है क्या? Have you all ever imagined or thought that in a day's time you have lost everything of your life? एक ही दिन में आपके चाहने वाले आपके हाथ छोड़ के चले गए। Within a day, the people who loved you have left you. हालेलुया। Hallelujah. एक ही दिन में एक्सीडेंट हो गया, आपका जो चाहने वाला वो भी चल दिया गया। Within a day's time, someone met with an accident whom you love and they left you. ये एक दिन का कीड़ा एक ही दिन में आके आपका पूरा जिंदगी को खा सकते हैं। This locust will enter your life and eat your entire life. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मेरे बहनों और मेरे भाई, My dear brothers and sisters, आपके जीवन का हर चीज आपको ध्यान देना है, in your life you need to be mindful of each and everything. क्योंकि कब कौन सा कीड़ा आपके जीवन में आने वाला पता नहीं। Because what type of locust is entering your life you do not know. आपको ही ध्यान देना है। You have to be mindful. अय्यूब के पास सब कुछ था, Job had everything. उसके पास कुछ कमी था? Was he lacking anything in his life? आप लोग वचन में पढ़ के देखो, उसके पास हर चीज था। He was everything. If you read the book of Job, बच्चे लोग थे, he had children, भेड़, बकरी, कैमल, ये वो पोजीशन सब कुछ था। he had everything, goat, sheep, property. एक दिन, Within a day, कितना दिन? सिर्फ 1 डे, within a day, एक दिन उसका जिंदगी को तहस महस कर दिया। in a day's time, his life changed away. हालेलुया। Hallelujah. आप लोग बहुत आप और मैं बहुत संभाल के रहने चाहिए जीवन में। You and me have to be very, very careful. हम सोचे रहे कि सब कुछ है, You might be thinking everything is there, पर वो एक दिन कब आएगा पता नहीं। but you do not know that one day will come when. पर जो उसके पास तैयार था। But Job was already ready for that. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. पहला कीड़ा किसको नष्ट कर दिया? The first locust destroyed whom? किसको नष्ट किया? एग्जांपल में बोला था Destroyed whom? अय्यूब को। ये जो दूसरा कीड़ा है, The second type of locust जो हफ्ते भर में आपको परेशानी देगा। that will come and disturb you the whole week. कितना? ये हफ्ते भर में परेशानी देते रहे कीड़ा। It will disturb you the whole week. ये कीड़ा किसके जीवन के अंदर गया है? Who will get this type of locust? आपको कुछ एग्जांपल आता है क्या माइंड में? You have any example in your mind? हफ्ते भर परेशान था कौन बाइबल में?
Who was disturbed for a week in Bible? जोना। It Who? was Jonah. जोना 1 में आप पढ़ेंगे तो Let's read, if we read Jonah chapter 1, पढ़ो मत, सिर्फ ध्यान दो, आप पढ़े रहेंगे। you would have read it in the past, just ये listen. जोना को परमेश्वर ने बोला ये जगह पे जा। God told to Jonah, go to this place. किधर बोला? डोंबिवली में जा God said, go to Dombivli और जाके वहाँ के मेरे उन लोगों को बोल, मैं तुम लोगों को सबको मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। go and tell all these people that I will do this, I will do that. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। पर Hallelujah. जोना बोला मैं नहीं जाएगा। Jonah said, I will not go. तो क्या किया उसने? What he did, डोंबिवली जाने के बदले में instead of going to Dombivli, बैंड्रा चले गया। went to Bandra. फॉर एग्जाम्पल डोंबिवली जाने की जगह पे Instead of going to Dombivli, धारावी चले गया। went to Dharavi. हालेलुया। Hallelujah. अभी हुआ क्या? What happened? उसको पानी से फेंक दिया गया He was thrown into the और water. 3 दिन एक मछली के पेट में था वो। A fish swallowed him and he was there inside the fish for 3 days. कितना दिन था वो? How many days? 3 दिन वो मछली के पेट में He था। was inside the fish, inside the उसको- belly of fish for 3 days. सोचो मछली आप मच्छी कितना दिन खाते हैं यहाँ पे? How many of you all eat fish over here? तुम लोग तो पूरा समुद्र खा लेंगे। हालेलुया। खाते हैं मच्छी के नहीं? You'll eat or not? सवाल एक पास्टर लाके तो दो फिर देखो। किस किस को मच्छी का सालन अच्छे से रखने आते हैं? How many of you all know to make good fish curry? इसको भी नहीं। थोड़ा गूगल वीगल मारो, क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब करो, You सीखो। all can learn it from तुम YouTube. आप लोग के शक्ल से दिखता है कि आप लोग मच्छी करी कैसा। Looking at your face, I can make out whether you will make a good fish curry or not. अगर मच्छी करी नहीं करने आता है If you do not know how to make fish curry, तो मच्छी फ्राई बना दो बस, वेस्ट मत करो उसको। so just make a fish fry. मजाक कर रहा था। It was just a joke. तो मच्छी जब आप साफ करते, When you clean the fish, आप लोग को देख के ऐसे लगता है नहीं कि आप मच्छी साफ भी करते रहेंगे। looking at you, I don't think so you would be cleaning लिया the fish. मसाला डाला, देखे किसको अच्छा इतने को चाहिए तो फिर जरूरत भी नहीं मसाला ज्यादा रखा, फ्राई किया, ले कैच। हालेलुया। Hallelujah. जब भी आप मच्छी को साफ करते हो, Whenever you clean the fish, कितने लोग उसके बाद हाथ धोते? how many of you all wash your hand after that? धोते कि नहीं धोते? You all wash or not? क्यों धोते हाथ? Why do you wash? हाँ, क्या आता है? You बास get आता है उसमें से, you get a bad smell. उसमें अरोमा नहीं आता है। You don't get aroma. वो आप अच्छे से सालन बनाया तो अरोमा आएगा, Once you make the dish, you get sweet aroma. नहीं तो बास ही आता रहेगा। Otherwise, it would be a bad smell. यहाँ पे बहुत सारा सालन में बास ही आता है। There are हालेलुया। hallelujah. तो सालन अरोमा जैसा बनाओ भाई। Make your curry a little bit with aroma. तो ये मच्छी को जब भी तुम छू लेते हो So whenever you touch this fish, तो आपको वॉश करना पड़ता है आपका हाथ, डेटॉल से या इससे उससे किससे दो, every time you need to wash your hands क्योंकि उसमें बहुत बास रहता है। because there was a bad smell. तो सोचो ये जोना So just imagine Jonah. वो मछली के पेट के अंदर था। He was there inside the belly of the fish. किधर था? Where? मच्छी के पेट के अंदर था। Belly of that fish. मच्छी बाहर से इतना बास मारता है From outside it is stinking. तो उसके पेट के अंदर कितना बास रहेगा? If he was inside, how bad it would have stinked. पूरा 3 दिन उसमें ही था। For 3 days it was stinking. वो बोलते ना 3 day 3 night stay, वैसा उसको मिला उधर। For 3 days and night he was inside the belly of the fish. फ्री वाला होटल। That too was free. हालेलुया। Hallelujah. ये जो कीड़ा जो है This type of ये locust, आपको हफ्ते भर में खाएगा। it will eat you in a week. ये हफ्ता भर परेशान था। He was worried for the entire week. कितना दिन परेशान था ये? How many days? हफ्ता भर परेशान For था। the entire week. अब हम तीसरे कीड़े के बारे में बात Now करें। we'll talk about the third. अभी आपको देखते हैं कितना याद है। फर्स्ट कीड़ा क्या किसको खा लिया? First locust ate whom? आपको चॉकलेट है। सेकंड कीड़ा किसको खाया? Second locust ate whom? आपको भी चॉकलेट। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, आज ही मिलेगा। ठीक है, चॉकलेट बाद में लेके आ रहा है। तो पहला कीड़ा किसको खाया? First locust ate whom? हम लोग को जब तो कुछ देता नहीं तब तो मुंह नहीं खुलता ना।
अभी चॉकलेट बोलो तो आज ही तुम लोग का मैं मुंह तुम लोग का दांत है करके मेरे को मालूम पड़ा। नहीं तो मुझे तो ऐसा लगता था कि तुम लोग को I was not able to understand. Today only you all are answering. Is it because of chocolates? हालेलुया। Hallelujah. तो पहला कीड़ा जोब को पूरा नष्ट कर दिया। So the first locust destroyed Job. दूसरा कीड़ा आके जोना को नष्ट कर दिया। The second locust destroyed Jonah. अब ये तीसरा कीड़ा Now the third locust. वो कितना दिन लगा था नष्ट करने के लिए? How many days that वो will कितना दिन परेशान करेगा आपको? How many days it will trouble? क्या बात। It is for a month. हालेलुया। Hallelujah. ये सोच के देखो आपको कौन सा कीड़ा आपके साथ है। Now you just think which type of locust you are staying with. एक ही कीड़ा आपको पूरा खा लिया Is there one locust which came and ate you up? या दूसरा कीड़ा हफ्ते भर आपको खा ही रहा है Or there is a second type of locust which is eating you over the या जो ये entire week? तीसरा कीड़ा हम बात करने वाले एक महीना आपको रख के खा रहा है। Or the third locust what we are talking about which is eating you for the entire month? एलाइजा। Let's look at Elijah. हालेलुया। Hallelujah. क्या कर रहा है? हम Elijah. 1 किंग्स में पढ़ेंगे उसके बारे में। 1 Kings एक राजाओं में पढ़ेंगे. अभी मत पढ़ो घर पे पढ़ो। एक 1 किंग्स 19 में आप आगे पढ़ के देखेंगे तो 1 Kings chapter 19 if we read. एलाइजा परमेश्वर का सबसे पावरफुल आदमी था। Elijah was a very powerful man of God. क्या था वो? Who was he? परमेश्वर का सबसे पावरफुल बंदा था। He was a very powerful man of God. वो जब प्रार्थना किया ना When he prayed, तो ऊपर से आग आता था। fire came down. आप लोग प्रार्थना किए तो ऊपर से कुछ भी नहीं आता। When you pray, nothing comes from heaven. हालेलुया। Hallelujah. ऊपर से छोटा पत्थर तो आएगा आप प्रार्थना किया तो। Did you even receive a small stone when you prayed? आज जब अगर पत्थर के लिए प्रार्थना करते तो मेरे को मत बुलाओ उधर, So when you are praying for stone, please don't call me. नहीं तो मेरे सर पे गिरेगा। Otherwise it will fall on my head. पास्टर परमेश्वर God, ये पास्टर बहुत बात करते हैं। this pastor is talking too much. सुबह सुबह प्रेयर रखते हैं He is keeping the prayer early morning. और ना नाश्ता देते, ना चाय देते, ना सैंडविच देते। Neither he is giving any snacks, breakfast. तो आप एक काम करो, Do one thing. जैसे एलाइजा के टाइम पे आग बरसाए, How at the time of Elijah fire came down. एक छोटा सा पत्थर पास्टर के सर पे मारो। Put one small stone on the head of pastor. ऐसा है क्या कोई? Is anyone praying like that? तुम लोग का कुछ भरोसा नहीं है। I can't trust you guys. तुम लोग चॉकलेट के लिए मुंह खोलने वाले, सैंडविच के लिए मेरा सर फोड़ के मिल जाए। The people who have opened the mouth for chocolates can break my head for sandwich as well. हालेलुया। Hallelujah. एलाइजा ने क्या किया? What did Elijah do? वो गया सबको, सब जो विग्रह आराधना कर रहे थे, People who are worshipping idols, सबको उसने मार दिया। he just killed everyone. क्या किया उसने? What he did? सब विग्रह आराधना करने वाले को मार दिया। Whoever was worshipping idol, he जो भी destroyed उसके them. अगेंस्ट था वो सबको मार दिया। Whoever was against him, he destroyed them. फिर उसको एक न्यूज आया Then he got a news. कि मैं तुझे एक स्त्री ने बोला कि मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। One woman said that I will destroy you. वो टाइम में सिर्फ स्त्री नष्ट कर सकते हैं। At that time, only women can destroy. हालेलुया। Hallelujah. कितना भी बड़ा तुम तोप रहेंगे तो भी No matter how big man you are, स्त्री का एक बोली बंदूक की गोली जैसा है। if a woman says one word, it will be like a sword. हालेलुया। Hallelujah. ये जैसा उसने सुना, The moment he heard that, क्या क्या मालूम क्या? what he did, you know? सीधा 40 दिन का एक लंबा सफर उठा लिया। He took a journey for 40 days. महीने भर का लंबा सफर उठाया उसने। For a month, he took a journey. हालेलुया। Hallelujah. कितना दिन का? How many days? और आप लोग ये मत सोचो रॉयल इनफील्ड लेके गया 40 दिन Don't think that he had Royal Enfield at that time. या स्कूटी लेके गया Or he had a scooty at that या time. कार लेके Or गया। he went by वो car. बंदा चल के गया है, He went walking. महीने भर चल रहा था। The entire month he was फिर walking. एक पहाड़ पे जाके सो गया। Then he went to a mountain and he slept there. हालेलुया। Hallelujah. ये महीने भर यही सोच के चल रहा था, The entire month he was just thinking, अरे मैं मर जाऊंगा, I would die. अभी मेरे को वो आके मार देगी। Now she will come and kill me. ये डर उसको पकड़ लिया था। That fear holded him. हालेलुया। Hallelujah. महीने भर चलने लगा। The entire month he was just walking. ये है तीसरा कीड़ा। This is the third type of ये locust. जब भी आएगा तो आपका पूरा महीना खाने शुरू कर दे। This type of locust, when it enters your life, it will eat a month. आप कितने भी बड़ा रहने दो, No matter how big, strong you पर are, ये
गया ना आपके जीवन में, when this locust comes into your ये life, आपको महीना भर खाता रहेगा। the entire month that locust will ये eat you. एलाइजा को भी यही हुआ था, Elijah also faced the same problem. महीने भर चल रहा था, The entire month he was walking. महीने भर परेशानी में था। The entire month he was troubled. अभी ये जो चौथा कीड़ा के बारे में बात कर Now रहा the हूं, last and fourth type of locust. ये साल भर खाने वाला है। This will eat you up for the entire year. हालेलुया। Hallelujah. पहला कीड़ा कितना दिन में खाएगा? First locust, within how many days it will eat you? वेरी नाइस। सेकंड कीड़ा Second type of locust, how many days it will? कितना? तीसरा कीड़ा The third, महीने भर में। the third one. अब जो चौथा कीड़ा है, Now the last one वो कितना कीड़ा? will eat up your year. ये कीड़ा किसको पकड़ लिया था? Who got hold of this locust? मोसेस को। It took hold of Moses. हालेलुया। Hallelujah. मोसेस को एक असाइनमेंट दिया था। There was an assignment given to Moses. मोसेस को बोला था मेरे लोगों को लेके यहाँ से लेके मैं जो देश बताता हूँ उधर जा। The assignment was to take God's people from one place to another. ते कितना हार्डली एक महीने का सफर था वो। The journey was only about a month's time. उसके अंदर ही था, It was that month's time पर only. 40 साल लग गए। But it took 40 years. कितना साल? How many years? 40 साल लग गए। 40 years. उसको एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए 40 साल लग To गए। go from one place to another, it took 40 years. एक महीने का भी सफर नहीं It हो, was not even a journey for a month, पर 40 साल लग गए। but it took 40 years. हालेलुया। Hallelujah. वो जो कीड़ा क्या किया उसने? What did that locust do? साल पूरा खा लेता है। It ate the years. ये परमेश्वर ये सब देखा है। God has been looking at it. जब जोब को एक दिन में आके कीड़े ने पूरा नष्ट कर दिया, At the life of Job, the locust came at one day and ate the entire thing. फिर जोना को एक हफ्ते में कीड़ा नष्ट कर दिया, And Jonah, it ate the entire week. एलाइजा को एक महीने का कीड़ा नष्ट कर दिया। And for Elijah, it ate the entire month. अभी मोसेस को कौन सा कीड़ा नष्ट कर दिया? Now, which locust came to Moses? कितना में नष्ट किया? Within how many years? ये सब होने के बाद After all these things happened, अब परमेश्वर यहाँ से देखता है, God has been looking from there. मेरे बच्चे लोग को सीख जो मैं सिखाना था वो मिल गया है। What I wanted to teach my children, they learned it. क्या? आपको परमेश्वर को सीख सिखाने का था, अभी वो उन्होंने सिखा दिया। God wanted to teach you something, and that happened now. अब उसके नीचे वाला वचन पढ़ो 26 में। Now let's read the other next verse. योवेल 2 में 26 रीड करेंगे. Joel chapter 2 verses 26. You shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, who has dealt wondrously with you, and my people shall never be put to shame. हालेलुया। Hallelujah. हिंदी में पढ़ो, तमिल में पढ़ लो। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। हालेलुया। Hallelujah. हाँ हाँ हालेलुया। Hallelujah. ये बाजू पढ़ लो। तुम पेट भरकर खाओगे हाँ, हाँ। और तृप्त होंगे हाँ। और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, हाँ जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटे। हालेलुया। Hallelujah. आप किसी के सामने झुकने का नहीं, परमेश्वर का एक नजर है। God never wants you to bow down in front of anyone आप else. किसी के भी सामने हाथ फैलाने का नहीं, वही परमेश्वर चाहते हैं। He doesn't want you to go and beg to anyone. आप लज्जित नहीं होने चाहिए, इसके लिए वो उनका वही सोच रहता हमेशा। He never wants you to be in shame. तो आपको और मुझे कोई ना कोई एक कीड़ा हमारे लाइफ में आके रह जाता है। So for you and me, there's some of the other locusts which have entered our life. अब ये मत सोचो कि परमेश्वर को ध्यान नहीं है, Don't think that God is not aware of it. ये मत सोचो कि कोई मुझे समझ में नहीं पाता है। Don't think that nobody is able to is understanding me. परमेश्वर को आपको कुछ सिखाना था, God wanted to teach you something. और उन्होंने वो कीड़ा उन्होंने भेजा। He had sent you that locust.
आपको नष्ट करने के लिए नहीं है। It's not to destroy you. हालेलुया। Hallelujah. आपको और ऊंचा उठाने के लिए है वो अनुमति दिया हुआ। Just to lift you up, He had allowed it. हालेलुया। Hallelujah. मोसेस को 40 साल लग गए। Moses took 40 years. जोब को पूरा एक युग लग गया। You took an entire life. जोना को पूरा हफ्ता लग गया। For Jonah, it took the entire week. एलिशा को महीने लग गए। For Elijah, it took an entire month. सबको उनके लाइफ में परेशानियां आई। Everyone had some or the other पर problem. अंत में क्या हुआ? But what happened in the end? जोब ने जो भी खोया उसका डबल उसने पाया। Whatever Job had lost, God restored him twice as much. हालेलुया। Hallelujah. जोब को डबल मिला। Job received everything double. जोना को वो जो जगह पे गया उसमें वो सबसे बड़ा महान इंसान वही था उधर। Jonah, the place where he reached, he was a big man for the people over there. वहाँ पे उसको सब रिस्पेक्ट सब ऑनर मिला He उसको। got all the respect and honor from the एलिजा को For Elijah, वो डायरेक्ट यहाँ से उसको उठा के स्वर्ग में लेके गए। he never faced death because God lifted him up directly. हालेलुया। Hallelujah. मोसेस का बॉडी को एंजल आके दफना के चले गए। The body of Moses, angels themselves came and took it. आज मेरे बहनों भाई My dear brothers and sisters, हम उठ के भी खड़े हो जाएंगे now we will stand. क्योंकि आज ये समय Now this time what is for us? परमेश्वर एक एक की जिंदगी के बारे में वो बात करने वाला है। God is talking to you, each one of you, to your life. आप आपके लाइफ में In your life, कुछ ना कुछ बड़ा खोए हो रही है। you might have lost something big. कुछ ना कुछ एक बड़ा नुकसान आप सह रहेंगे। You might be losing something. उस नुकसान को परमेश्वर आज भरपाई करके देने वाला है। God wants to fulfill and restore that. वो आपका हेल्थ रहने दो, Let it be your health. आपका पैसा रहने दो, Let it be your money. आपका पोजीशंस रहने दो, Let it be your possession. आपका रिलेशनशिप रहने दो। Let it be your relationship. जो भी आपने खो दिए Whatever you have lost, परमेश्वर आज उसको भरपाई करने वाला God है। is going to restore it. क्योंकि परमेश्वर हर चीज देखता है। God sees everything. वो हमेशा आपको देखते रह रहा है। Every time He keeps on watching over you. आपका आंसू को वो देखा है। He saw your tears. आप जब रोए थे वो देखा है वो। When you were crying, He आपको was लगा कि watching. मुझे कोई देखा ही नहीं, You were just thinking nobody is there watching me और out. वो सब देखा था। But He saw everything. वो एक एक चीज का हिसाब रखा है। He has kept an account of each of और your things. आज परमेश्वर ये बोल रहा है And आपको, God is saying to you today, जो भी नुकसान तुझे आज मिला है, whatever loss you have जो भी faced in your नुकसान life, से तू चला है, whatever loss you have walked through, आज परमेश्वर उसको खुशी से भरपाई करके दे। I will fill it with happiness. अगर आप ये वचन को भरोसा करते हैं If you believe the word of तो God, परमेश्वर के लिए ताली बजाकर ये clap your hands and receive this blessing. मेरे लाइफ में सब खोया हूं मैं। I have lost so many things in my मेरे life. लाइफ में इतना सारा नुकसान, I have lost so many things in my life. पर परमेश्वर उसका भरपाई आज देने But वाला है। God will restore it today. Today is your day. आज का ही वो दिन है. Today is the day of settlement. यही वो दिन है जहाँ पर परमेश्वर He वापस will देगा. settle your sorrows. आप जो भी खोए वो वापस देगा. He will settle your pain today. आपका जो दर्द है वो वापस He देगा. will settle your losses today. आप जो भी लॉस देखे ना उसे भरपाई से बदल देगा. Come on, church. कलिसिया के लोगों, क्या क्या खोया आप? what all you lost? क्या क्या खोया आपके जीवन में? What all you lost in your life? आज परमेश्वर उसको फिर से रिन्यूअल करने वाला है। God is going to restore, renew it again. आप सोचे ये गया मेरा से, You would be thinking it is lost. It मेरा has gone. जिंदगी खत्म। My life is over. नहीं, No. परमेश्वर एक नया जिंदगी आज आपको देने वाला है। God is going to give a new life for you today. परमेश्वर एक नया बिजनेस आपको देने वाला है। God is going to give a new business today. परमेश्वर आपको एक नया शरीर देने वाला God है। is going to give you a new body today. परमेश्वर एक नया मिनिस्ट्री आपको देने वाला God है। is going to give you a new ministry. परमेश्वर नया जॉब आपको देने वाला है। God is going to give you a new job. परमेश्वर नया लाइफ पार्टनर आपको देने वाला God है। is going to give you a new life partner. परमेश्वर आपके बच्चे को नया करने वाला God है। is going to make your children new. हर चीज जो नुकसान में था Whatever was lost, वो सब चीज आपको प्रॉफिट में बदलने वाला God है। is going to turn it into your profit. Everything is gonna be beneficial for you, my brothers and सब my कुछ sisters. आपकी भलाई के लिए परमेश्वर Receive करेगा. it in the name
धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। अभी खत्म हो गया है, Now it's over. प्रार्थना भी खत्म हो गया, The prayer is also over. आपका समस्या भी खत्म हो गया। Your problem has also come to an end. हालेलुया। आप कभी भी ये मत सोचो Never ever think that कि आपको पूछने वाला कोई, nobody is there to आप ये ask. मत सोचो कि आप अनाथ है, Don't think that you are an orphan. आप ये मत सोचो आप कमजोर है। Don't think you are so weak. आपके साथ परमेश्वर जब है, When God is with you, आपके सामने लाखों परेशानी भी रहने दो, even there are lakhs and lakhs of आपके problems. सामने कोई भी खड़ा रहने दो, No matter who is standing वो against आपके you, ऊपर जय नहीं पा he सकता। will not win over you. हालेलुया। Hallelujah. वो जन सोचे रहेंगे ये तो अभी गया, ये तो अभी गई। So many of you are thinking, he left me, she left me. सब जन सोच रहे हैं अभी इसका लाइफ खत्म हो गया। Now your life has come to an end. जो सोचा आपका लाइफ खत्म हो गया, The people who are thinking that your life is over, परमेश्वर खत्म होने से जगह से नया शुरुआत आज the आपको देगा। same point where you are standing from there is giving a new और beginning. इस बार नया शुरुआत आपके हिसाब से रहेगा। And this time the new beginning will ask for you. उस नया शुरुआत में रोना धोना नहीं In रहेगा। that new beginning you don't have to cry for anything. इस नया शुरुआत में In the new beginning एक नया उमंग जाग उठेगा। there will be a new type of job. ओह हालेलुया। Hallelujah. और एक वचन मैं आपको देना चाहता हूँ। I want to give one more verse. ये लास्ट वचन है, That's the last verse for मैं चाहता today. हूँ कि सब पढ़ो I want every one of you to read it. और ये पढ़ के परमेश्वर से बात करो आज। And when you read, talk to God. रोमन्स 8 में 37, 38, 39 सब लोग पढ़ लो। Romans chapter 8, रोमियो की पुस्तक में 8 अधिकार लेंगे. Let's read Romans chapter 8 verses. जो बाइबल नहीं लाए नहीं पढ़ सकते वो भी शायद शेयर कर सकते। People who do not have Bible, please share and read. Romans chapter 8. पढ़ो 38। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ हाँ। कि न मृत्यु न जीवन एक मिनट अभी सब बोलो, ना मृत्यु न जीवन ना जीवन न क्या? स्वर्गदूत न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत एक मिनट अभी ना मृत्यु ना जीवन, न जीवन ये दोनों हमें परमेश्वर से क्या नहीं कर सकता है, अलग नहीं कर सकते। अलग नहीं कर सकता। अभी दूसरा क्या है, न स्वर्गदूत ना स्वर्गदूत न प्रधानताएं ना कौन क्या प्रधानताएं प्रधानता है। हालेलुया। ना स्वर्गदूत Neither angels ना प्रधानताएं or principalities. जो ये बोले वो मुंह में ही नहीं आ रहे। प्रधानताएं हाँ प्रधानता है। हालेलुया। ये दो चीज में हमें किससे जुदा नहीं कर सकता है, परमेश्वर से परमेश्वर से जुदा नहीं कर Will सकता। not be separated because of these two. न वर्तमान ना वर्तमान न भविष्य ना भविष्य क्या ना न वर्तमान ना वर्तमान न भविष्य ना भविष्य किससे जुदा नहीं कर सकता हमें, परमेश्वर से परमेश्वर से जुदा नहीं कर सकता। और न सामर्थ ना सामर्थ न ऊंचाई ना ऊंचाई, ये दो चीज में हमें क्या नहीं कर सकता है, परमेश्वर से अलग नहीं कर सकते। हो गया क्या और है परमेश्वर है है न गहराई ना गहराई और न कोई और सृष्टि हाँ वो भी क्या नहीं कर सकता, अभी परमेश्वर से अलग नहीं कर सकते। अलग नहीं कर सकता। और कुछ है, हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है हाँ। अलग न कर सके। हालेलुया हालेलुया। तो ये सब रेट तो मैं अभी सिंपल लैंग्वेज में बताता। Now I will tell in a simple language. ना माँ Neither your dad, ना पिताजी neither your mom हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकते। can separate you from God Jesus. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ना शक्ति ना बल हमें परमेश्वर से जुदा नहीं कर सकते। Neither power, neither name can separate us from the love of God. ना हमारे पढ़ाई Neither our studies, ना हमारा कमाई neither our money परमेश्वर से हमें जुदा नहीं कर सकते। can separate us from God. ना पति Neither our ना पत्नी neither our wife हमें परमेश्वर से जुदा नहीं कर सकते। can separate us from the love of ना God. बच्चे Neither our children, ना दोस्त neither our friends हमें परमेश्वर से जुदा नहीं कर सकते। can separate us from God. हालेलुया। Hallelujah. हमें कोई भी चीज परमेश्वर से जुदा नहीं कर सकता है। हालेलुया Nothing can separate us from the love of God. हालेलुया। Hallelujah.
देखो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, Even you know and I also know. सबको पता है कि माँ का प्यार बहुत गहरा होता है। Everyone knows the love of a mother is so deep. माँ का प्यार बहुत गहरा होता है। The love of a mother is so vast and deep. एक स्त्री का प्यार बहुत गहरा होता है। The love of a woman is very deep. हम स्त्री को समझ ही नहीं पाते। Men cannot understand women. इसके लिए स्त्री हमेशा ये कंप्लेंट करती है, That's why the women always says आप तो मुझे कभी प्यार ही नहीं करते। that you never love us. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। स्त्री लोग का मेन कंप्लेंट यही रहता है, The main complaint of a woman is, आप मुझे पहचानते ही नहीं, you do not know me. आप जानते ही नहीं, You don't understand me. मेरा प्यार गहरा है। My love is so deep. सच है। That's true. परमेश्वर भी बोलता है, Even God says जो स्त्री है उसका हार्ट को हम ही टेक केयर करने चाहिए। only the man can take care of the heart of a woman. बेइंतहा मोहब्बत स्त्री कर सकती है। A woman can love you deeply. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम मर्द लोग, हम आदमी लोग नहीं कर सकते, And we men cannot love that deeply क्योंकि आप लोग बहुत गहरा करते हैं। because you are so deep. हम आदमी लोग में वो नहीं है। We do not have that thing in us. पर जिस दिन एक आदमी But the day when a man मोहब्बत करने लगता है ना, he loves the women, वो मोहब्बत के लिए सूली चढ़ जाता है। he can take the Hallelujah. cross for that woman. जिस आदमी मोहब्बत कर दिया ना किससे, The man who loves you, उस मोहब्बत के लिए वो सूली चढ़ जाएगा। he can be crucified for you on the cross. उसका बेस्ट एग्जाम्पल है यीशु मसीह। The best example is Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. आदमी मोहब्बत नहीं कर पाता है, The man cannot love like a woman. पर जिस दिन उसने मोहब्बत कर लिया ना, But the day when he loves फिर you, उस मोहब्बत के लिए वो सूली चढ़ जाए। for that love he will even face death. इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए, Because of that God, हमारे ऊपर मोहब्बत के लिए for he loved us. वो फना हो गया। He gave up his life for us. हालेलुया, Hallelujah. वो खुद को नष्ट कर दिया। He destroyed himself for us. वो ही वाकई में कंप्लीटली फना हो गया। He destroyed himself for us. मोहब्बत उनसे सीखना चाहिए, If you want to know what is love, learn it from Jesus कोई Christ, इंसान से नहीं। not from people. इंसान का प्यार आज ऐसा इधर है, कल उधर है, किधर है पता नहीं, The love of people will be there today, tomorrow we do not know. पर परमेश्वर का प्यार But the love of God, हमेशा एक ही स्थिर में रहता है। it will be firm all the time. इसलिए परमेश्वर आज आपको देख के ये बोल रहा है, That's why God is saying to you today, आपसे वो बेहद मोहब्बत कर रहा He है। is loving you so deeply. इसलिए आज आपको और मुझे ये बोल रहा है That's why He's talking to you and me. कि आपने जो भी नष्ट आपके जिंदगी में आया है, Whatever you have lost in your life, आपको जो भी आपने खोया है, whatever you have lost in your life, भले वो एक दिन का नष्ट हो, let it be a day's loss, या एक हफ्ते का नष्ट हो, or a week's या loss, एक महीने का हो, or a month's या loss, सालों का हो, or years have been lost. आज का दिन, Today, क्या डेट आज? what is the date today? डेट क्या है? 21st July, 21 जुलाई। 2024. क्या है 21 जुलाई? ये आप लोग लिख के रखो। You write and keep this date. आज का दिन Today, आपको वो God will, जो भी नष्ट उठा है ना, whatever loss you have faced, उसको घुमा के डबल पेमेंट करने वाला He है। is going to restore you in double portion. आप सोच रहे हैं कि अरे मेरा 6 महीने से मेरा पगार अटका हुआ है, You might be thinking since 6 months I have not earned my अरे money. मेरा 1 साल से बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा है। Since a year I have not got any money in my business. आज लिख के ले लो, Today you write and keep. वो सब चुकाने वाला He है। is going to restore double. Hallelujah. Hallelujah. 2000 साल पहले आके क्रूस उठा के उन्होंने चुका दिया। 2000 years ago He carried the cross and He paid once and for all. 2024 में भी वो चुकाने वाला है। Even in 2024 He will वो repay. किसी को भी दरिद्र रखना नहीं चाहता He है। doesn't want any of you to be in poverty. वो किसी को भी अंधकार में रखना नहीं चाहता He है। doesn't want any of you living a dark life. वो किसी को भी आंसू भरा जिंदगी में नहीं रखना He चाहता। doesn't want you to be weeping, crying over your life. आज आपको रिसीव करने का दिन है। You just have to receive it today. आज कितने लोग आपका जिंदगी को ऑफिस से डबल पोर्शन में रिसीव करना How चाहते many of you all want your life to be restored in double portion? हैं? आपको जो भी नेगेटिव था वो किस किस को पॉजिटिव होना चाहते हैं? Whatever negative things you have
positive. नया जिंदगी किस किस को चाहिए? How many of you want a new life? अगर आप लोग को चाहिए If you want, तो आप लोग आंख बंद करके close your eyes. एक एक करके आगे आ जाइए। Come ahead. मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ, I will pray for you. क्योंकि ये जो समय है ना, Because this time, आपको समझ में आए या नया है, you understood or not. अगर आपने उसको एक्सेप्ट किए नहीं एक्सेप्ट किए, You have accepted it or not. परमेश्वर को उससे कुछ लेना देना नहीं है। God doesn't have to do anything with that. परमेश्वर ने बोला आपको आशीर्वाद करूंगा, आपको भलाई करूंगा तो करूंगा, खलास। If He said, I will do good to you, I will bless you, that means He is a man of word. हालेलुया। Hallelujah. आज आपका जिंदगी में अच्छे अच्छे न्यूज़ आप सुनने लगेंगे आने Today वाले। in your life, you will hear all the good news you have been waiting for. आपको लगता रहेगा कि नहीं ये पैसा कहाँ से आया और आपके अकाउंट में आते रहेंगे। You might be thinking, from where I am getting this money, but you will receive it. आपका मेहनत करने का आपको फल मिलने लगने लगेगा। Whatever hard work you have been doing, you will be rewarded for आप that. सोच भी नहीं सकते, जब परमेश्वर देता है तो सब फाड़ के दे आते हैं। You can't even imagine or think of when God gives, it will be plentiful. ये लेने का समय है, This is the time to receive. आदमी लोग से नहीं। It's not from your man. हालेलुया। Hallelujah. आदमी लोग से ले मत, It's not from your man. परमेश्वर से लेना है हमें। It's from God. हालेलुया। Hallelujah. जिसको भी प्रार्थना करने वो आगे आ जाए। People who want, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। we will thank the Lord. धन्यवाद पिता परमेश्वर, Thank you, Father. इस अच्छे समय के लिए हम आपका धन्यवाद Thank करते you for हैं this प्रभु। nice time. आपके वचन के लिए हम धन्यवाद Thank करते you हैं for प्रभु। your word, हम Lord. भरोसा करते हैं We प्रभु, believe, जो Lord, भी चीज हम खोए हैं प्रभु, whatever we have lost, चाहे वो कुछ भी होने दो no प्रभु, matter what it या is, वो इंसान या लोग होने दो प्रभु, even if it is people, या हमारे शरीर की बल होने दो प्रभु, even if it is my strength, या फिर पैसा होने दो even प्रभु, if it is the जो money, भी चीज हमने खोया है हमारी जिंदगी whatever में, I have lost, आप हमें दुगना भी देने वाले हैं you प्रभु। are going to restore double. आप हमें उससे भी अच्छा चीज देने वाले You are हैं going प्रभु। to give more than what we have lost. आप हमारे आंसू को दिन को देखे प्रभु, You have seen the days of my tears. हम खाली घूम रहे थे, आप ध्यान दिए प्रभु, We were walking like an empty हम man. टूटे हुए थे, आपने ध्यान दिया प्रभु। We were broken and you had looked upon आज us. हम विश्वास करते हैं And प्रभु, today we believe, Lord, आप हमें दुगना आशीर्वाद you are करें। going to restore doubly. जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, People who are watching us online, उनको भी आशीर्वाद करना। bless them as जो well. नहीं आ पाए आज People who are परमेश्वर, not able to come उन्हें भी today, आशीर्वाद bless करना। them as well. आपका सुसमाचार के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you for your wonderful हम words, सारे Lord. महिमा आपको देते We give प्रभु, all the glory to you. और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना In करते हैं। Jesus Christ's name I pray. आमीन। Amen. हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य को, यहोवा को धन्य और करो, जो कुछ मुझ में है, और जो कुछ मुझ में उसके है, पवित्र नाम को धन्य उसके को। पवित्र नाम को धन्य करो। हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य को, यहोवा को धन्य करो, उसकी किसी उपकार को और उनके किसी उपकार को कभी नहीं भूलो। कभी नहीं भूलो। इन आत्मावे कतरे स्तोत्री, In इन मूलों में और ಪರಿಶುದ್ಧ परिशुद्ध ನಾಮತೆ नाम ಸ್ತೋತ್ರಿ. In ಆತ್ಮವೇ ಕರ್ತನೇ ಸ್ತೋತ್ರಿ, ಕರ್ತರ್ ಸೇವೆ ಸರ್ವವರ್ಗೆ ಮಿಂಚೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah.